شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ کم نہ ہو سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے بھی مختلف علاقوں میں بجلی بندش کی شکایات برقرار ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ لائنز ایریا، لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن اور قائم خانی کالونی میں 10 گھنٹے سے زائد کی بندش کی جا رہی ہے۔ ملیر، شاہ فیصل، جعفر طیار، کورنگی اور لانڈھی میں بھی ابتر صورتحال کا سامنا ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا اور نارتھ ناظم آباد میں بھی 6 سے 8 گھنٹے کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی کے شارٹ فال کے باعث شہر میں لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے۔ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ بندش نہیں کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، پاکستان ریلوے کا کراچی سے گزرنے والا 52 کلومیٹر ٹریک جگہ جگہ پر غیر ملکیوں پر مشتمل کچرا مافیا کے نرغے میں ہے، جس سے شہر کا حسن گہنا رہا ہے۔ دوسری جانب حادثات کا خطرہ بدستور سر پر منڈلا رہا ہے۔ کالا پل کے مقام پر کینٹ اور سٹی اسٹیشن کے قریب پاکستان ریلوے نے تجاوزات تو ختم کر دی، تاہم کچرا مافیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس مافیا کی سرپرستی ہر جانب سے کی جا رہی ہے۔ ریلوے کی اہم تنصیبات کے قریب غیر ملکیوں کی موجودگی لمحہ فکریہ ہے۔ کچرا اٹھانا چاہیے، یہ اس کا کے ایم سی کا کام ہے۔ کے ایم سی والے جو بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا کام ہے، اور جو بڑے بڑے جو آفیسر ہیں اس کو تنخواہ لے رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ریلوے ٹریک سے متصل کچرے کے کاروبار سے خطرات اپنی جگہ، گندگی اور آلودگی شہریوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ دراصل غلط ہے یہ بہت، یہ اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو کچرا جلاتے ہیں اس کا دھواں اڑتا ہوگا اور اس سے جراثیم بھی ہوتے ہوں گے، بچے اس سے بیمار پڑتے ہیں۔ یہ تو زمانے سے یہاں، اور یہ کباڑی لوگ ہیں، یہاں اخوانی لوگ ہیں، یہاں سے زمانے سے کچرے گاڑی بولنے کا زیادہ دفعہ لوگ آئے، پھر یہ مطلب خود ان کی ریلوے والوں کی خود کمزوری ہے۔ ٹرین کا سفر کر کے کراچی آنے والوں کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک پر اس قدر کچرا ہے کہ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کراچی کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کورنگی میں حالیہ بارشوں سے تباہ حال سڑکیں لوگوں کی جان لینے لگی۔ سنگر چورنگی پر پڑے گڑھوں سے گزرنا شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ انتظامیہ ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ انتظامیہ کی غفلت کے سبب ضلع کورنگی کی ٹوٹی پھوٹی شاہراہیں حادثات کا سبب بننے لگیں۔ یہ مناظر ہے سنگر چورنگی کی شاہراہ کے، جہاں سیوریج کے پانی نے سڑک تباہ کر دی۔ خستہ حال سڑکوں کے باعث ٹریفک حادثات بھی بڑھ گئے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہوتے ہیں۔ ہم نے درخواستیں بھی دیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سر یہاں پر اتنا برا حال تھا کہ سمجھ لیں کہ میں ایک دفعہ یہاں سے آ رہا تھا تو میری گاڑی پوری اندر گھس گئی تھی پوری۔ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے مین چوراہوں پہ، اگر انتظامیہ کچھ کرے یا نہ کرے، کم سے کم تھوڑا بہت تو کم سے کم مینٹین اس کو کر دے۔ سر مشکلات اتنی ہے، جب اندھیرے میں ہم لوگ آتے ہیں یہاں، بائک ہمارے ڈر کے ہمارے نا گھبرا کے بائک ہم پھینک دیتے ہیں، گری آتی ہے، پھر اوپر سے اسنیچنگ والے آ جاتے ہیں، وہ جو اب جب گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھتے تھوڑی ہیں کہ کوئی بڑا ہوا ہے کون نہیں بڑا ہوا، وہ سب چیزیں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ سنگر چورنگی سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ لوگ ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں لیکن کام کرانے کو کوئی تیار نہیں۔ مشکلات ہے یہاں پر کھڈا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیڈیز مطلب لے کے جا رہے ہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، باقاعدہ لیڈیز گری بھی ہے یہاں پر، اور لے جاتے وقت بھی لوگوں کو مطلب کہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ حادثات بھی ہوتے ہیں، گاڑی سلپ بھی ہوتی ہے اور لوگ دیکھ کے یہاں سے گزر جاتے ہیں، اور کوئی پرسانے حال نہیں۔ کراچی کا بہت برا اثر ہو گیا۔ کورنگی سنگر چورنگی اہم سڑک ہونے کے باوجود انتظامیہ کی نااہلی کی کہانی سنا رہی ہے، جہاں شاہراہ کی خستہ حالی پر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ کیمرامین راہیل کے ہمراہ سید نعمان گل، سٹی 21۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شہر قائد کی تباہ حال سڑکوں کی بحالی کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی متحرک ہو گئے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف سڑکوں کی کارپیٹنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کبھی ٹارگٹ کلنگ چلتی تھی، اب ٹارگٹ سیاست چل رہی ہے۔ شہر قائد میں مونسون کی بارشوں سے تباہ حال سڑکوں کی بحالی کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ میٹروپول ہوٹل کے اطراف کی سڑک کی کارپیٹنگ کے علاوہ ٹیپو سلطان، شہید ملت، بلوچ کالونی ایکسپریس وے، ناگن چورنگی، گلبرگ، دو تلوار، اولڈ سٹی ایریا، شاہراہ لیاقت میں کام شروع کر دیا گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ہم نے شہر کو ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ بہت جلد شہر کی تمام سڑکیں مکمل بحال ہو جائیں گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی
और तमाम DMCs की ज़ेर निगरानी मुरम्मती काम जारी है। हालिया बारिशों के बाद बड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो हमने कहा इसको प्रायोरिटी पर उठाया जाए। इसी तरीके से टिपू सुल्तान रोड के ऊपर काम हो रहा है, शहीद मिलत रोड के ऊपर काम हो रहा है, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे के ऊपर काम हो रहा है, सुबह नागन चौरंगी की तरफ कारपेटिंग की गई है, गुलबर्ग के एरिया में कारपेटिंग की जा रही है, दो तलवार की तरफ काम किया गया। इसी तरीके से ओल्ड सिटी एरिया में जो मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ रोड जाती है, शारा लियाकत है, उसके ऊपर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ नौइयत के काम हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून व तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे यहाँ मसला ये है कि कभी टारगेट किलिंग चलती थी, अब टारगेट सियासत चल रही है। मैं समझता हूँ कि लोगों की बेहतरी हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये, कभी टारगेट किलिंग चलती थी, अब टारगेट सियासत चल रही है। मैं समझता हूँ इस तरह से मसाइल हल नहीं होते, मुश्किल वक्त हैं। आप देख सकते हैं मुल्क में सैलाब की कैफियत है, आधा सूबा सिंध जो है बदकिस्मती के साथ इस वक्त जो बारिश की तबाहकारी है उससे परेशानी में मुब्तला है। लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। इस मौके पर लोग अपनी अगर टारगेटेड सियासत करेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ प्रॉपर नहीं है। मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को शहर में काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सूरत हाल थी इसी इंतज़ामिया ने उसका सामना किया है। कैमरामैन फैसल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस रास्तों की बंदिश से मुल्क में खुर्दनी तेल और घी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एडिबल ऑयल टैंकर एसोसिएशन बख्तावर खान का कहना है कि कौमी शाहराहों पर सैलाबी पानी में खाने के तेल से लदे 800 से 1000 टैंकर कौमी शाहराहों पर फंसे हुए हैं। तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों और बिफरते दरियाओं ने मवासलाती निज़ाम भी तबाह कर दिया। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया है, जिसके बाइस 800 से 1000 तक टैंकर्स कौमी शाहराहों पर फंसे हुए हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एडिबल ऑयल टैंकर एसोसिएशन बख्तावर खान का कहना है कि रास्ते बंद होने से खुर्दनी तेल और घी की सप्लाई रुक गई है। रास्ते हमारे लिए नहीं है, हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, एडिबल ऑयल नहीं, जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट है वो इस टाइम दर बदर है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर ये रास्ते जल्द अज जल्द नहीं खोले, एडिबल ऑयल तो छोड़ दो, डीजल और पेट्रोल का भी बहरान आ सकता है। बख्तावर खान के मुताबिक टैंकर्स फंसने के बायस ड्राइवर भी बेयारो मददगार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सप्लाई की बहाली के लिए मुतबादिल इक़दाम किए जाएं ताकि किसी भी किस्म के बहरान से बचा जा सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी मार्केट में जूते की दुकान जलकर खाकसर हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां, बाजर और स्नार्कल की मदद से 2 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद काबू पा लिया गया। नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक आग की इतला के फौरी बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मजहर खान के मुताबिक इब्तिदा में 4 और बाद में मजमूई तौर पर 10 गाड़ियों, स्नार्कल और एक बाउजर गाड़ी ने आग पर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया। तकरीबन 7 गाड़ियाँ हमारी जिन्होंने हिस्सा लिया, बाउजर थे पानी के और वाटर टैंकर हमने और मज़ीद मंगा लिए थे, ज़रूरत पड़ी थी तो उसको हमने बर वक्त कार्रवाई करके कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, कम्प्लीटली उसको आग को बुझा दिया गया। आग से 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। मार्केट इंतजामिया के मुताबिक दुकान और गोदाम में मौजूद लाखों मालियत के जूते और दीगर सामान जलकर खाकसर हो गया। आग बुझाने के हालात क्योंकि होता ये है कि हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है कि जो इतनी बड़ी आग को काबू कर सके, और ख़ासतौर पर जूते की आग को। मगर ओवरऑल मैं आप लोगों के चैनल की तरफ से कहूँगा कि फायर ब्रिगेड के अमले ने, यहाँ की इंतजामिया ने फुल सपोर्ट की है। अब ये नुकसान का अंदाज़ा बाद में लगाया जा सकता। ज़िला इंतजामिया का दावा है कि हैदरी मार्केट समेत शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों का सर्वे जल्द किया जाएगा और आग पर फौरी काबू पाने के लिए आलात जिस दुकान और मार्केट में ना पाए गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दानियाल सैयद, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में सैलाब मुतासरीन को छत फराहम करने का सिलसिला जारी है। ज़िला कोरंगी में सैलाब मुतासरीन को आर्जी पनाहगाहों में ठहराया गया है। सिंध भर से आए हज़ारों सैलाब ज़दगान
शहर के बेशतर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में मुंतकिल किए जाने लगे। जिला कोरंगी में कायम सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप में 600 से ज़ायद मुतासरीन को आर्जी पनाहगाहों में ठहराया गया है, जहां फलाही इदारों की तरफ से खाने पीने की सहूलियात फराहम की जा रही है। सूबाई इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की देखभाल के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इधर आर्जी पनाहगाहों में रहने वाले सैलाब मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बोले हाजत के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वॉशरूम ऐसा है जो इतना उसमें गंदा है, वजू का जगह भी नहीं है, जो बैठने की जगह भी नहीं है, इतना गंदा है जो मैं तेरे को क्या बताऊं। कोई जगह नहीं है, कम से कम 20 लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पानी भी नहीं है जो हम वजू करें नमाज पढ़े। हमारे पास न बिस्तरा है नहीं है, पर हम डूब के बच्चा लेके इधर आया हूँ, बोला है वो गवर्नमेंट का रूल है, हमारा रोटी देना है, समझा। जिले इंतजामिया का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा है। सुबह से 3 वाटर टैंकर मंगवा चुके हैं और मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी पहली तरजीह है। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। कराची में सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी। सफूरा चुरंगी के करीब सचल गोट और मौसमियात पर सैलाब मुतासरीन के लिए 6 कैंप्स कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में हुकूमत की जानिब से रिहाइश और इलाज मौलजा, जबकि फलाही तंजीमों की जानिब से खाने पीने का एहतमाम किया गया है। कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए 6 अजला में 40 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक रिलीफ कैंपों में 17,137 मुतासरीन को ठहराया गया है। कराची के जिला ईस्ट में सफूरा चौरंगी के अतराफ सच्चल गोट और मौसमियात में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सैलाब मुतासरीन के लिए 6 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ मौजूद मुतासरीन का कहना है कि कैंप्स में खाना पीना समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन अपने घर की अपनी बात है। एक कमरे में कई खानदान आबाद हैं। शेरो सिंध से आए, तालको कंडियारों से आए। हमारे गांव पूरा जो है सैलाब में डूब गया है। हम जो अभी जो बड़ी परेशानी में है, यहाँ तो खाना पीना मिला है, लेकिन हमारी पोते ये जो मकानात सारे जो है पानी में डूब गए हैं। यानी हमें अपना घर बना के दे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न खाने की न कपड़ों की हमें ज़रूरत है। हमें अपने घर की ज़रूरत है कि जैसे तैसे करके हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे बेजार हो चुके हैं, जो गाँव में खेलते कूदते बच्चे अभी यहाँ परेशान और मुहताज हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स में सैलाब के बाद वबाई अमराज के पेश नज़र मुतासरीन के इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर्स और अद्वियात मुहैया की गई हैं। कैंप इंचार्ज डॉक्टर फरीद चन्ना का कहना था कि रिलीफ कैंप में सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से बीमारियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। बड़ा मसला इस वक्त सफाई का है। पिछले चंद दिनों से हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि सफाई हो, लेकिन सफाई हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। यहाँ इतने मसाइल हैं कि आपकी सोच है, हम किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी ख़राब हो रही है। कोई स्किन डिजीज़ को देख रहे हैं तो गैस्ट्रो ख़राब, किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। कराची के रिलीफ कैंप्स में सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत घर दोबारा तामीर कराने और दोबारा आबाई इलाकों में मुंतकिली के लिए मदद करे, ताकि अपने ख़ानदान के साथ अपने घरों में ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़मीनें आबाद करके फल सब्जियाँ और फसलें काश्त करें। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21।